ہر مسلمان یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف ہمارا ہی خالق نہیں بلکہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر فی الکون ہے، کائنات کے اندر تصرف کرنے والا بھی وہی اکیلا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اور جتنے بھی ہمارے اوپر انعامات ہیں سارے کے سارے اسی کے ہیں۔ لہذا جب وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، مدبر کائنات ہے اور متصرف فی الکون ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے، اپنے غلاموں سے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ سے مدد طلب کرو، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کرو، اور جس مالک نے تمہارے اوپر انعامات کیے ہیں اس کا شکر بجا لاؤ، اس کی ناشکری نہ کرو، اس کے اوامر اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو، اور اگر تم اپنے مالک کے انعامات کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور نعمتیں زیادہ جو ہے وہ عطا کرے گا، اور اگر تم اس کی بندگی نہیں کرو گے، اس کے ساتھ شرک کرو گے، اس کی نافرمانی کرو گے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، تو نہ صرف وہ تم سے اپنی نعمتیں چھین لے گا، مزید نعمتیں کرنا بند کر دے گا، اور اپنے طرح طرح کے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کر دے گا۔ اور سابقہ زندگی، سابقہ قوموں کے حالات اس بات کے اوپر روز روشن کی طرح یہ دلیل ہیں کہ جن قوموں نے اللہ کی بندگی نہ کی، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اس کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ نے نعمتیں بھی چھین لی اور طرح طرح کے عذاب نازل کیے، کبھی زلزلے کا، کبھی طوفان کا، کبھی پانی کا، اور کبھی بستیوں کو اٹھا کر اوپر لے جا کر نیچے پھینک دیا، کبھی کسی کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش جو ہے وہ برسا دی، قوموں کا کچومر نکال دیا اور تہس نہس کر کے ان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا۔ یہ تاریخ موجود ہے، قرآن مجید نے تمام قصوں کی طرف جو ہے وہ کھل کر اشارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا حقیقی خالق اور مالک اور منعم ہے، اگر اس کی بندگی نہ کی جائے اور اس کا شکر ادا نہ کیا جائے، اس کی ناشکری کی جائے اور نافرمانی کی جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا بندہ سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں، اسے اپنا مالک سمجھتے ہیں، خالق سمجھتے ہیں، رازق اور معبود سمجھتے ہیں، تو اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اس کے نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، اور اس کے اوامر کی نافرمانی نہ کریں، وگرنہ اس کی جانب سے پھر جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ کسی انسان سے مخفی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نعمتیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، بہت سے انعامات بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں، لیکن بڑی قیمتی نعمتیں ہم سے چھن چکی ہیں۔ ان میں سے ایک خاص نعمت نزول مطر ہے، بارش۔ آج بارش نہیں ہو رہی، دنیا کو اس وقت شدید بارش کی ضرورت ہے، موسم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، کھیتی باڑی کے اعتبار سے، دنیا کے تمام امور کے اعتبار سے، لیکن بارش جو ہے وہ نازل نہیں ہو رہی۔ یہ بارش برسانے والی ذات بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کا حکم ہوتا ہے تو بارش اترتی ہے، اس کا حکم نہیں ہوتا ہے تو نہیں اترتی ہے۔ وہ جہاں جی چاہتا ہے خوب بارش برساتا ہے، اور جہاں جی چاہتا ہے ایک قطرہ بھی برسنے نہیں دیتا۔ زمین کے ہر خطے پہ
पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला अहादीस में आता है हर साल एक तरह की बारिश बरसाते हैं, कम और ज्यादा नहीं होती, लेकिन बस इतना होता है कि कभी किसी इलाके में बरसा दी और कभी किसी इलाके में बरसा दी। आज अगर हमें जरूरत है तो हमारी बारिश पहाड़ों में और जंगलात में और सहराओं में बरसा दी जाती है और हमें ये बारिश नहीं मिल रही है। इसकी वजह क्या है? आइए थोड़ा सा जायजा लीजिए। इमाम इब्ने कुदामा रहमहुल्लाह ने एक किताब लिखी है क़िससुत ताइबीन, तौबा करने वालों के किस्से। उनके अंदर ये, उस किताब के अंदर एक किस्सा लिखा है कि पहली उम्मतों में भी ऐसा होता था, बारिश नाजिल ना होती, अंबिया, सुलहा, नेक लोग अपनी कौम को लेकर सहरा में निकलते, नमाज़े इस्तिस्का पढ़ते और अल्लाह से बारिश की दुआ मांगते। अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसा दिया करता था। आज हमारी कौम की बेहिसी की इंतहा है कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया गया है। नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं है। पिछले दिनों जामिया में इंतजाम किया गया, अल्लाह जामिया की इंतजामिया को जज़ाए खैर अता फरमाए, लेकिन बाहर से आने वाले अफराद इक्का दुक्का खाल खाल नजर आते थे, जामिया के तलबा के अलावा कोई नजर नहीं आया। क्यों? हर किसी को अपनी ड्यूटी प्यारी है, अपनी नौकरी जो है वो प्यारी है, बच्चों का स्कूल में जाना जो है वो प्यारा है। बारिश नाजिल नहीं होती, कौम तबाह होती है, हो जाए, हमें इससे क्या गरज है? अल्लाह की तरफ से अजाब आता है तो आ जाए, मुझे तो अपना घर बड़ा प्यारा है, अपनी दौलत बड़ी प्यारी है, अपने बच्चे बड़े प्यारे हैं, इस बारिश की मुझे जो है वो कोई खास जरूरत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को एक दफा लेकर जो है वो बारिश तलब करने के लिए निकले, दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज की, रो रो कर दुआएं मांगी, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता वही लेकर आ गया। मूसा, आपकी दुआएं अपनी जगह पे ठीक है, तुमने दुआ मांगी है, पहले भी मांगते हम बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आज बारिश नहीं बरसाई जाएगी। कहा या अल्लाह क्यों? कहा तेरी कौम के दरमियान एक बंदा है जो बड़ी देर से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, बगावत कर रहा है और नाफरमानी के ऊपर नाफरमानी किया जा रहा है, मासियत किया जा रहा है। उस बंदे को अपनी कौम से बाहर निकाल दो, मैं अभी बारिश बरसा देता। ऐलान कर दो वो बंदा जो है वो बाहर निकल जाए, अगर वो बाहर निकल जाएगा हम अभी बारिश बरसा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दी कि वो बंदा जिसकी वजह से पूरी कौम के ऊपर नहूसत तारी हुई है, बुराई, गुनाह एक बड़ी मनहूस शय है। हम नहीं समझते कि यह नहूसत है, हम ये समझते हैं कि मैंने 20 गुनाह किए, 100 कर लिया, 1000 कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे किसने पूछा है? मैं बड़ा मजबूत हूं, बड़ा ताकतवर हूं, मेरी बड़ी हैसियत है और बड़ी पावर है, मैं किसी के पैसे मार लूं, मैं किसी के साथ ज्यादती कर लूं, मैं कोई गुनाह का काम कर लूं, मुझे तो कभी किसी ने पूछा नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये नहीं मालूम कि आपकी गुनाह की वजह से आपके बीवी बच्चों के ऊपर नहुसत तारी है, आपके खानदान के ऊपर नहुसत तारी है, आपके मोहल्ले के ऊपर, आपकी कॉलोनी के ऊपर और पूरे शहर के ऊपर, बल्कि पूरी कौम के ऊपर उस नहुसत का जो है वो असर पहुंचता है। मूसा उस बंदे को बाहर निकाल दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया। वो बंदा बड़ा पशेमान हुआ, कौम से मैं बाहर निकलूं तो सारी दुनिया में जलील हो जाऊंगा, मैं इतना मनहूस आदमी हूं जिसकी वजह से बारिश रोक दी गई है, सारी दुनिया सारी जिंदगी के लिए मैं जलील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा। उसी वक्त गिरेबान में मुंह डाल लिया, रोने लगा, या अल्लाह इतने गुनाह किए, मुझे जाहिर नहीं किया गया, लेकिन आज मैंने गुनाह नहीं किया, आज मैं तेरे सामने बैठा हूं और आज मैं रुसवा होने लगा हूं। या अल्लाह मैं तुझसे सच्ची तौबा करता हूं, मुआफी मांगता हूं, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, बस मेरे ऐबों पे पर्दा डाल दे, मेरे ऊपर पर्दा डाल दे। उसने रो रो के दुआ मांगी, आजी और इनके सारी से दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने बारिश शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, या अल्लाह अभी तो वो बंदा निकला ही नहीं, तूने बारिश भी बरसा दी। कहा मूसा
उस हमारे बंदे ने हमसे तौबा कर ली, लिहाजा जब उसने हमसे सच्ची मुआफी मांग ली, हमने मुआफ कर दिया और बारिश बरसा दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह वो बंदा मुझे दिखा तो दे, इतना तेरा मुकर्रब बंदा कि एक ही मर्तबा तौबा करने से उसकी तौबा भी कबूल हो गई, उसने कैसी तौबा की होगी, या अल्लाह मुझे वो बंदा दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जिस वक्त उसने गुनाह किए थे हमने उस वक्त तुझे जाहिर नहीं किया कि फलां बंदा, उसको बाहर निकाल। अब तो उसने तौबा कर ली है, अब हम उसको लोगों के सामने कैसे जाहिर कर दें, वो हमारा बन चुका है। हम लोगों को बेऐब नहीं करते, लोगों के ऐब जो है वो जाहिर नहीं करते, लोगों को जो है वो हम शर्मसार नहीं करते। अगर वो हमारी तरफ जो है वो पलटने वाले हो जाते हैं, अगर वो तौबा करने वाले और रुजू करने वाले बन जाते हैं, हम लोगों के सामने उसको जलील नहीं किया। किस्सा मुख्तसर, एक बंदे के गुनाहों की वजह से बारिश जो है वो रुक गई और एक बंदे की तौबा की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसा दी। किस्सा मालूम नहीं, नकल किया गया है, रिवायत का मुझे नहीं मालूम, जो भी है, लेकिन बात ऐसे ही हकीकत में मालूम होती है। कुरान और हदीस का अगर मुताला किया जाए तो आयात और अहादीस यही बात बतलाती हैं कि जब इंसान नाफरमानी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतें जो है वो छीन लेता है और अपने अजाब जो है वो नाजिल करता है। आज मैं भी और आप भी अपने अपने गिरेबान में झांक कर जरा देखें, आज कौन सी बुराई है जो हमारे मुआशरे में मौजूद नहीं, आज कौन सा जुर्म है, कौन सा गुनाह है जो हम या हमारी कौम जो है वो नहीं कर रही है। क्या शिरक इस कौम में मौजूद नहीं है? बड़े धड़ल्ले के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जो है वो तौहीन की जाती है, फौत शुदगान को सजदा किया जाता है, उनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला को पुकारने वाला कोई नहीं। लोगों को पुकारा जाता है जो अल्लाह के और सारी कायनात के खुद मोहताज हैं, उन्हें जो है वो मुश्किल कुशा समझा जाता है। मूर्तियों को, दरख्तों को, पत्थरों को और दुनिया की मुख्तलिफ चीजों को इंतहाई मुकर्रम समझा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला को कुछ भी नहीं समझा जाता। अल्लाह तबारक व तआला की जब ये तौहीन की जाएगी तो फिर इनामात कहां से मिलेगी? बिदआत और खुराफात उनको दीन का हिस्सा बना दिया गया है। कितने ही नेकी के ऐसे काम हैं जो हमारी शरीयत में मौजूद नहीं है और हम बड़े धड़ल्ले से उनको शरीयत बनाकर जो है वो सरंजाम देते हैं। ये भी इबादत का काम है, ये भी इबादत का काम है, ये भी इबादत का काम। क्या हरज अगर कर लिया है, मेराज की रात में हमने कूंडे दे दिए हैं तो क्या हरज? हमने जो है वो शबरात की रात अगर आतिशबाजी का मुजाहरा कर लिया और बत्तियां जो है वो जला ली हैं तो इसमें क्या हरज है? साथ में हम सदका खैरात भी तो करते हैं, रोजा भी तो हम रख लेते हैं, इसमें क्या हरज है? अगर 12 रबीउल अव्वल को हम दिन मना लेते हैं तो इसमें आखिर क्या हरज है? नबी वसल्लम ने नहीं मनाया है, सहाबा नहीं मनाया, आखिर ये हमारी मोहब्बत का जरिया ही तो है ना, हम तो मोहब्बत ही करते हैं। नहीं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया है हमें करना चाहिए, अगर नहीं किया है या करने का हुक्म नहीं दिया है, वो आपकी मोहब्बत और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कभी नहीं बन सकती। चाहे वो हमारे नजदीक कितना ही पसंदीदा अमल क्यों ना हो, उसके ऊपर करोड़ों और अरबों रुपए खर्च क्यों ना कर लिए जाएं, वो काम कभी भी इबादत जो है वो नहीं बन सकता। आज कितने ही मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, माएं और बहनें और बेटियां और वालिदैन कितने ही ऐसे बदनसीब हैं, सुबह का सूरज तुलू होता है तो फिर वो उठते हैं, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, नमाज पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। कितने लोग हैं इस मोहल्ले के अंदर, तमाम कॉलोनियों के अंदर, अगर तमाम लोग मस्जिदों में चले जाएं, अल्लाह की कसम बगैर मुबालगे के कहता हूं, ये मस्जिदें जो है वो थोड़ी पड़ जाएं और मस्जिदों में जगह ना मिले नमाज पढ़ने वाले, अगर पूरे मोहल्ले के और पूरी कॉलोनी के तमाम लोग किसी भी मस्जिद में चले जाएं, सिर्फ हमारी मस्जिद में नहीं, किसी मस्जिद में भी चले जाएं और जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो मस्जिदें जो है वो थोड़ी पड़ जाएं। यहां पे ईसाई नहीं रहते, यहां पे यहूदी नहीं रहते, यहां पे मजूसी नहीं रहते, मुसलमान रहते हैं। इक्का दुक्का अगर ईसाई हैं तो उनका तो कोई शुमार नहीं है, अक्सरियत मुसलमानों की है। और जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनमें से कितने मुसलमान हैं जो वक्त के ऊपर नमाज पढ़ते,
कितने मुसलमान, कितनी माएं और बहनें हैं जो वक्त के ऊपर नमाज पढ़ती हैं, अजान हो जाए तो फिर नमाज अदा कर ली जाए, वक्त ना गुजरने दिया जाए, 2-2, 3-3, 4-4 नमाजों को जो है वो जमा कर लिया जाता। और कितने मेरे भाई हैं जो जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, हफ्ता हफ्ता, चलो 5 नमाजें तो छोड़िए, हफ्ते के बाद एक नमाज हमने अदा करनी होती है, वो जुमे की नमाज पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। कितने अफसोस की बात है, ये रियासत मदीना का ख्वाब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है, लेकिन जुमे की ऐन नमाज के वक्त में लोगों को स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों और इदारों के अंदर जो है वो छुट्टी दी जाती, उनकी नमाज जुमा को जानबूझकर खराब किया जाता है। आप 1 घंटा पहले छुट्टी देते, मुसलमानों को जुमे के दिन छुट्टी होनी चाहिए, चलो ना छुट्टी हो, आप 11 बजे छुट्टी कर, जुमे के दिन स्कूल और यूनिवर्सिटी और इदारे आप 1 घंटा पहले खोल लें, 8 बजे की बजाय 7 बजे दवाम जो है वो कर दें, और 7, 11 बजे, 12 बजे या 1 बजे छुट्टी देने की बजाय 11 बजे छुट्टी कर, 1 घंटा जो है वो पीरियड कम कर दें, 1 घंटा ड्यूटी जो है वो कम कर दें। लेकिन कितने अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना हमारी कोई मिल का मालिक, ना हमारे दफ्तरों वाले, ना हमारे सरकारी ओहदों वाले, ना स्कूल और कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट वाले, किसी के यहां भी यह निजाम नहीं है कि लोगों की जुमे की नमाज का जो है वो एहतमाम किया जाए। ना खुद पढ़नी है, ना दूसरों को पढ़नी है, आप ड्यूटी के पाबंद, आपको तनख्वाह मिलती है, आप हमारे गुलाम हैं, यहां पे गुलामी कीजिए। ये रियासत मदीना, ये हम खुद भी रियासत मदीना का ख्वाब देखते हैं, हम खुद भी चाहते हैं यहां पे इस्लाम नाजिल हो, लेकिन कौन इस्लाम नाफिज हो, कौन उसके लिए कोशिश करता है? कोई एक प्राइवेट स्कूल वाला बतलाए कि हम अपने स्कूल में जुमे से पहले 1 घंटा पहले छुट्टी कर देते, जाइए आप आधे घंटे में घर पहुंच जाएं, आधे घंटे में तैयार हो जाए और उसके बाद जो है वो नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। और जिनके पास वक्त है उनकी हालत भी आप देख रहे हैं, कितना वो जुमे की नमाज के ऊपर, मैं मुसलसल 3-4 जुमे हो गए मुसलसल कहता हूं वक्त पे आए, वक्त पे, मेरी खातर नहीं, आप ना भी आए, यहां 5 बंदे भी हों, मेरा फरीजा है, मैंने जुमा पढ़ाना ही पढ़ाना, 10 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, हम जुमा पढ़ाएंगे अल्लाह के फजल से। लेकिन आपका अपना फायदा है, आपके लिए, क्या आप नहीं चाहते हैं खैर का कोई कलमा आपके कानों में पड़ जाए? क्या नहीं चाहते? कुरान मजीद की आयात नहीं बताई जाती, यहां पे अहादीस नहीं बतलाई जाती? आप नहीं चाहते कि 2 आयतें मेरे कान में भी पड़ जाए, उनका तर्जमा मेरे कान में भी पड़ जाए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज नमाज जुमा अदा करने के लिए हमारे पास जो है वो वक्त मौजूद नहीं है। आगे चलिए, ये रियासत मदीना है और ये मुसलमानों का इलाका है, हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कोई खामद है तो अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा है, कोई बीवी है तो अपने शौहर पे जुल्म कर रही है, कोई बाप है तो अपने बेटे पे जुल्म कर रहा है, कोई बेटा है तो अपने बाप के ऊपर जुल्म कर रहा है, वलियादु बिल्लाह। कितने ही भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहनों की जायदाद पे नाजायज कब्जा कर रखा है और गलती से मजबूर करके उनके फार्म के ऊपर, कागज के ऊपर जो है वो अंगूठे लगवाए जाते हैं कि आप ये कहिए कि मैंने जायदाद जो है वो अपने भाई को दी, मैंने अपना हिस्सा जो है वो छोड़ दिया। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो भाई ताना देते हैं, फिर सारी जिंदगी तुम मेरा चेहरा नहीं दे सकोगे, अपनी जायदाद जो है वो मेरे नाम पे लगा, और फिर मेरे मरने के ऊपर भी मेरे घर में तुम ना आना। यहां बारिशें रुकेंगी नहीं तो और क्या होगा? चंद रुपए की खातिर इंसान अपनी बहनों के ऊपर और अपने छोटे भाइयों के ऊपर जो है वो जुल्म करता है। 20 मसले आते हैं वरासत के कि एक बंदे ने जो है वो जायदाद पे कब्जा कर लिया है और बाकी लोगों का हिस्सा देने के लिए तैयार। कल ही एक खातून आई, वो कहने लगी मेरे शौहर का एक भाई है, उसने वालिद की जिंदगी में अपना हिस्सा ले लिया, मेरे शौहर को वालिद ने हिस्सा देना था, वो ना लिखवा सका और फौत हो गया। भाई इकरार भी करता है कि बाप ने मेरा हिस्सा दे दिया है और इसका हिस्सा बाकी है, लेकिन आज कहता है कानूनी तौर पे आपके नाम पे ये जायदाद नहीं हो सकी, लिहाजा बाप की विरासत में मैं भी हकदार, मुझे भी उसमें से हिस्सा दीजिए, ये सिर्फ आपका हिस्सा नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है कि आज मुआशरे के अंदर कौन सा जुर्म है जो हम नहीं करते? कितने ही लोग हैं, कितनी ही औरतें हैं, कितनी ही माएं और बहनें हैं जिनकी रातें टीवी के सामने, वीसीआर के सामने और
मोबाइल के सामने जो है वो गुजरती हैं। नमाज पढ़ना और तहज्जुद पढ़ना तो बड़ी दूर की बात। मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इंसान जो फिल्में देखता है और जो प्रोग्राम देखता है, उसका कौन जिम्मेदार है? रातों को बेदार रहता है इंसान इस काम के लिए और अपना वक्त जाया करता है और कौम के ऊपर जो है वो नहुसत तारी करता है। एक एक बंदा भी, कोई आदमी हो, मैं हूं या आप हूं, अगर हम रात जागते हैं और गलत काम करते हैं, उसकी नहुसत सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है बल्कि पूरी कौम के ऊपर, तमाम मुआशरे के ऊपर है, पूरी उम्मत के ऊपर है। कौन कौन से गुनाह का मैं तस्करा करूं यहां पे? वो कौन सा जुर्म है जो हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो नहीं पाया जाता? वलियादु बिल्लाह। आज हम कहां पे हैं? कौमों के ऊपर बारिश नहीं रुकेगी तो और क्या होगा? मैंने जिक्र किया, अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, राजिक है, मुनीम है। वो हमें एहसानात करता है और नेमतें देता है। अगर उसका शुक्र अदा न किया जाए, उसकी नाशुक्री की जाए, उसकी बंदगी न की जाए, उसकी नाफरमानी की जाए, वो अपनी नेमतें छीन लेता है। वो फिर तरह तरह के अजाब नाजिल करता है। और हम देखते भी हैं, कभी बीमारियां आती हैं, कभी जो है वो सैलाब आते हैं, कभी जलजले आते हैं, और कभी हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान जो है वो मुसल्लत कर दिए जाते हैं। हम जो है वो हुक्मरानों का रोना पीटते हैं, वो फलां 10% था, फलां ये करता था, फलां ये करता था, ये जालिम लोग हैं। कभी हमने अपनी करतूतों की तरफ नहीं देखा कि हमारे आमाल क्या हैं। जिस तरह का मुंह होता है उसी तरह का थप्पड़ हुआ करता है। जिस तरह के इंसान के आमाल होते हैं उसी तरह के अल्लाह तबारक व तआला हुक्मरान मुसल्लत कर देते। ये भी हमारे लिए अजाब है। आज बारिश क्यों नहीं होती? हमारे गुनाहों की बिना पर, हमारी बदआमालियों की बिना पर। जरूरत इस बात की है, वापस पलटें, वापस पलटें, अल्लाह से तौबा करें। जो जो नेमतें हमने एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, हजारों नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल कर रखी हैं, लेकिन उनका कभी शुक्र अदा नहीं किया। उनका शुक्र यही है, वक्त पे नमाज पढ़ो, एक अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ और उसकी बंदगी करो। बंदों के ऊपर जो है वो जुल्म ना करो, किसी का हक ना मारो, किसी के साथ ज्यादती ना करो, किसी के साथ जुल्म ना करो, और कोई गुनाह का काम ना करो। अगर गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला से तौबा कर लो, अल्लाह से मुआफी मांग लो। फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला कैसे बारिश नहीं नाजिल करता, कैसे अल्लाह की नेमतें दोबारा जो है वो नाजिल नहीं होती। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। लोगो, मैंने तुमसे कह दिया है अपने रब से मुआफी मांग, इन्नहु कान गफ्फारा, वो बड़ा मुआफ करने वाला है, वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। बस शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा करे, सच्चे दिल से मुआफी मांगे, या अल्लाह अब गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, आइंदा मैं रुकने का आज़म करता हूं कि आइंदा दोबारा ये हरकत नहीं करूंगा। ऐसी तौबा कीजिए। फिर देखिए, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिश जो है वो नाजिल कर देगा। सिर्फ बारिश ही नहीं बरसाएगा, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, तुम्हें माल भी देगा, तुम्हें औलाद भी देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हें बागात भी अता करेगा और तुम्हारे बागात के लिए नहरें भी जो है वो चला देगा। ये सिर्फ बख्शिश तलब करने की बिना पर होगा। अगर अपने गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा की जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों की खूब जो है वो बारिश बरसा देगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर यही मामला जो हमारे साथ चल रहा है, एक परेशानी उठेगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी उठेगी तीसरी आ जाएगी। ये फिर ना खत्म होने वाली आजमाइशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये परेशानियां, ये इब्तिलाएं, ये मुसीबतें खत्म हो तो जरूरी है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है कि आप फरमाते हैं, मैं अल्लाह तबारक व तआला से इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौम अक्तर मिन 70 मर्रा, मैं एक दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करता हूं। नबी कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके गुनाह है ही नहीं, जो गुनाह करते ही नहीं, वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा इस्तिगफार करता हूं। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, हमने कई दफा शुमार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठ जाते, उस मजलिस में उठने से पहले
कम अज कम जो है वो 100 मरतबा इस्तिगफार कर, रब्बिगफिर वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह तू माफ कर दे, या अल्लाह तू माफ करने वाला है, या अल्लाह तू रहम करने वाला है, या अल्लाह तू मुझ पर माफ कर दे, मेरे ऊपर एहसान फरमा। आप 100 से ज्यादा मर्तबा ये कलमा कहते, फिर अपनी मजलिस जो है वो बर्खास्त कर। अंदाजा लगाई। और आज हमें तो इस्तिगफार की जरूरत है, इस्तिगफार के लिए हमारे पास जो है वो टाइम ही नहीं। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह, उनके पास एक सवाली आया और आकर कहने लगा, कहत साली है, बारिश नहीं हो रही, बहुत ज्यादा जो है वो रिज़्क मौजूद नहीं है, हमें रिज़्क की बड़ी कमी का जो है वो हम शिकार हैं, कोई वजीफा बतलाइए, कोई दुआ बतलाइए। कहने लगे, जाओ जाकर इस्तिगफार करो। वो चला गया। दूसरा बंदा आया और आकर कहने लगा, हजरत साहब बहुत ज्यादा फकीरी है, मोहताजगी है, जरूरत है और जरूरतें पूरी नहीं होती, मुझे माल चाहिए, पैसा चाहिए। कहा, जाओ जाकर इस्तिगफार करो। तीसरा बंदा आया, कहने लगा, बाग जो है वो खिजा का उसके ऊपर जो है वो शक्ल जो है वो तारी है, खिजा की सूरत है, बाग जो है वो हरा नहीं हो रहा, पानी नहीं है, खुशक हैं और फल नहीं दे रहे, दरख्त सूख रहे हैं। कहा, जाओ जाकर जो है वो इस्तिगफार करो। करीब में एक बंदा बैठा था, वो कहने लगा, हजरत क्या मामला है? 3 सवाल किए गए और मुख्तलिफ सवाल किए गए, आपने तीनों को एक ही जवाब दिया। कहा, ये मेरा जवाब नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का जवाब है जो सूरह नूह के अंदर तज़किरा किया। फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। फरमाया, तुम जो है वो अल्लाह ताला से तौबा करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह बारिश भी दे देगा, औलाद भी दे देगा, और तुम्हें जो है वो बारिश औलाद के साथ जो है वो माल भी दे देगा, और तुम्हें बागात भी अता कर देगा, और तुम्हारे लिए नहरें भी जो है वो चला। फरमाया, इस्तिगफार करने की वजह से ये सारी चीजें जो है वो इंसान को हासिल हो जाए। इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह एक दफा इमाम जाफिर इब्ने मोहम्मद इब्ने अली इब्ने हुसैन रहमहुल्लाह उनके पास गए और कहने लगे, मुझे कुछ हदीसें बयान कीजिए, मुझे कोई हदीसें जो है वो बयान कीजिए। कहने लगे, ज्यादा हदीसें पढ़ के क्या करनी, क्या करोगे इतना ज्यादा सीख कर? मैं तुझे 3 बातें बतलाता हूं, मैं तुझे 3 बातें बतलाता हूं, इनको पल्ले बांध लो, यही तेरे लिए काफी। कहा, जी जरूर फरमाई। कहा, नंबर 1, जब तुम जो है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर इनाम करें, इज़ा अनअमा अल्लाहु अलैक फअहबब्ता दवामहा, जब अल्लाह ताला तेरे ऊपर जो है वो कोई नेमत कर दे और तुम उसका दवाम चाहो कि ये नेमत बाकी रहे, फअक्सिरिल हम्द व शुक्र लिल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करो, बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हर दफा जब उस चीज को देखो, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने मुझे अता, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ने मुझे अता, बहुत ज्यादा शुक्र करो, अल्लाह तबारक व तआला तेरी नेमतों को जो है वो दवाम अता फरमा। वइज़स्तब्तात रिज़्क़, अगर तेरा रिज़्क जो है वो मुतअखिर हो जाए, पीछे रह जाए, तुझे रिज़्क ना मिले, फअक्सिर इस्तिग़फ़ार, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस्तिग़फ़ार किया कर, अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों की बख्शिश जो है वो तलब किया कर, अल्लाह से मुआफी मांगा कर, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फ़कुल्तु अस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु गफ़्फ़ारा इला आखिरिल आया। अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बारिश भी दे देगा, तुम्हें रिज़्क भी दे देगा, रिज़्क ही नहीं देगा, तुम्हें औलाद भी दे देगा। और तीसरे नंबर पे फरमाया कि जब जो है वो तुम्हें जो है वो कहत साली का गालबन, कहा उन्होंने कि कहत साली का शिकार हो जाओ, तो उस वक्त भी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार। तीसरी चीज जो है वो मेरे ज़हन से निकल गई, और याद आई तो इंशाअल्लाह मैं जिक्र करूं। कहा, ये चीजें अपने पल्ले बांध लो, तो तुम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तुम्हें ये चीजें जो है वो अता फरमा। लोगों, आज जरूरत है कि हम अपने गुनाहों का मुराजा करें, अपनी कैफियत का मुराजा करें कि हम जो है वो कहां पे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का कहां तक शुक्र अदा करते हैं और कहां तक नाशुक्री करते हैं, कहां तक हम बंदगी करते हैं और कहां तक उसके अवामर की नाफरमानी करते हैं। अगर हमें जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों को जारी और सारी रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर बारिश भी बरसा दे और हमारी परेशानियों को भी दूर कर दे, तो जरूरी है
کہ ہم اپنے گناہوں سے پکی اور سچی جو ہے وہ توبہ کریں. اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم بھی ہے، وہ ہماری توبہ کو قبول بھی کرنے والا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ضرور بارش جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے. لہٰذا ہم اس وقت ظاہری طور پر اور آپ سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے طور پر باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگیے، یا اللہ ہم سب کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنی رحمت کی بارش جو ہے وہ برسا دے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.